Hello everyone. Today I am going to discuss at this point. The point is exclamatory sentences. Okay. In your previous video, I have taught you many things, just like your assertive sentences, interrogative, imperative, optative, and now the last one is your exclamatory sentences. Okay. This is very important and for you, this sentence also. Now I am going to start here exclamatory sentences. First we will read the definition here. Okay. First we read the definition, then I will give the meaning in Hindi. I will give the meaning of this definition in Hindi that you understand it properly. Okay. Now start from here. The definition is when we need to express some strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, and anger, okay, regret, or contempt, and this hearted, etc. we use exclamatory sentences. जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि जब भी हम अपने अंदर से जो भाव व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी का भाव, दुख का भाव, या गुस्से का भाव, या हंसी का भाव, जो भी हम व्यक्त करते हैं, विच कम्स वेरी सडन फीलिंग एंड इमोशन, वो आपके चेहरे पे आ जाता है. दैट come in your exclamatory sentence. Okay, once again the definition is here. We will read here. When we need to express some strong feeling and emotion of surprise, sorrow, joy, regret, and contempt, and your hatred, etc., at that time we use the exclamatory sentences. Okay. For example, जैसे मैंने आपसे बताया कि जैसे मैंने कहा ओह इंडिया won the match या इंडिया विन द मैच, तो उस समय आप क्या दुख होते हैं, आपको दुख का भाव आता है या आपके अंदर हर्षो उल्लास का भाव आता है. तो वो अचानक से आता है ना, कि कोई आपको प्रेशर डाल के वो देता है. या आई कम फर्स्ट इन द क्लास, ओह या आई कम फर्स्ट इन द क्लास, ये आपके अंदर से आता है. ओह सो बैड. तो ये अपने आप एक्सप्रेशन आ जाता है. या आप किसी भी छोटे बच्चे को या किसी अच्छे बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ओह सो ब्यूटीफुल चाइल्ड. जब आप ये चीज़ आपके मुंह से निकलती है तो आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन भी आ जाता है. दैट ऑल कम इन योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जब भी हमें अपने भावों को व्यक्त करना होता है, चाहे वो आपके सरप्राइज के हों या आपके सौरों को हैं, जॉय के हो, रेग्रेट के हों, या कंटेम्प्ट के हों, या खुशी, हर्ष, उल्लास, या आपके दुख, जो भी भाव आप व्यक्त करते हो उस समय वी यूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखा, उसमें भी वी पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, हम लोग उसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं. लाइक दैट ओनली इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी व्हेन यू राइट अ सेंटेंस एट द लास्ट यू हैव टू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो ये एक पॉइंट ये आपको याद करना है. अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके भाव व्यक्त होते हैं, वो जो भी मैंने एग्जाम्पल जो डेफिनेशन में आपके दिए, वो भाव जब व्यक्त करते हैं दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो we will do the here example, then we will understand it very properly that what is exclamatory sentence. Okay, so I am going to give you some example of exclamatory sentence. The example, first example is your what a boy, क्या बच्चा है. what a boy, exclamation mark you have to put here. Okay, second, how bad. Okay, this is also the example of your exclamatory sentence. I will explain here in the best way. First you see the example here. Third, how dare you, exclamation mark. Okay, it is how dare you have to put here also the exclamation mark. Fourth,
What a beautiful girl! Exclamation mark. Okay. Now the fifth one. I am giving the example here to understood it you very properly. Okay. Now, what a tragic end! Exclamation mark. And this is your what? This is a regret. Okay. Sorry, this is regret. I am going to explain here how what a tragic end. And in all the sentences, I have put the exclamation mark in the ending. Okay. मैं हर सेंटेंस के अंत में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है. दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज व्हाट, या हाउ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट. ओके. तो फर्स्ट आई वांट टू गिव सम स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर. जैसे कि आपने ये देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं. आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि हाउ और व्हाट से आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. हाउ एंड व्हाट. ओके. तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ हाउ प्लस एडजेक्टिव. ओके. दिस इज वन स्ट्रक्चर. सेकेंड वन आपका मैंने देखा है हाउ प्लस एडजेक्टिव. इससे भी आपके शुरू होते हैं. द सेकेंड वन इज व्हाट से भी ये स्टार्ट होता है. व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. दिस इज द प्लस नाउन के बाद आप अदर मतलब सब्जेक्ट सॉरी अदर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, या अदर थिंग जो भी आपके सेंटेंस में आगे आगे आता है. दैट ऑल है. ओके. तो हाउ प्लस एडजेक्टिव एंड व्हाट. तो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन दोनों वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दिस इज द मेन स्ट्रक्चर. ओके. नाउ आप देखिए ये कैसे होता है. हाउ एडजेक्टिव. टेक वन सेंटेंस फ्रॉम हियर. द एग्जाम्पल हाउ बैड. आपने देखा आपका फर्स्ट हाउ और एडजेक्टिव आपका बैड हो गया. सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ बैड. फॉर एग्जाम्पल अब आप इसका एग्जाम्पल लीजिए. व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. आपने ये लिया व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल. ओके. तो व्हाट आपका ये आ गया, एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल आ गया और नाउन आपका गर्ल आ गया. ओके. तो दिस इज द मेन, you can say this is the main structure of the exclamatory sentence. okay. so please बेटा इसको you remember all this thing. जब आपको ये याद रहेगा तो you will write the exclamatory sentence in the right way. okay. ये तो चीज़ आपका हो गया. अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए बॉय. इसमें आपके कौन से एक्सप्रेशन, या जैसे आपको बोला था ना वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जब हमें ज़रूरत होती है कि हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन जब हमारे अपने आप व्यक्त होते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं. तो आप ये बताइए कि व्हाट ए बॉय. व्हाट ए बॉय में आपको क्या लगता है कि इट इज़ वेरी सैड न्यूज़, या इट इज़ योर रिग्रेट और कंटेम्प्ट. व्हाट ए बॉय. दिस इज़ योर सरप्राइज. ठीक है. ये आपका क्या है, सरप्राइज है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सरप्राइज. जब आप सरप्राइज, जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं what a boy, what a boy, this come in surprise. okay. now the second one how bad. how bad बहुत बेकार, बहुत गंदा. तो ये किस में आता है आपका, क्या सरप्राइज है ये, या जॉय है. आप जॉय में कभी कहते हैं ओ हाउ बैड. आई थिंक सो नो. तो ये किस में आपका आ गया, ये आपका आ गया किस में, कंटेम्प्ट में. ओके. ये आपका कंटेम्प्ट में आ गया. ओके. नाउ ये कंटेम्प्ट मीन्स होता है क्या, घृणा. हाउ बैड बहुत गंदा, नहीं बहुत गंदा. तो ये आपका हाउ कंटेम्प्ट मीन्स ये आपका हाउ बैड कंटेम्प्ट के रेंज में आ गया. नाउ हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू कैसे आपने किया, हाउ डेयर यू हैव डन दिस वर्क, यानी आप गुस्से में हैं. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंगर.
जब आप गुस्से होते हैं तब. What a beautiful girl. Wow, what a beautiful girl. This come in your joy. Okay? This come in your joy. Now, what a tragic end. This come in your regret. I have written this in the starting only. So, here, what a tragic end. This is your, what this is? This is your regret. And regret means pashtatap. What a tragic end. आपको पश्चाताप हो जाए. ट्रेजेडी मतलब दुखद. ओके, कितना दुखद अंत है. उफ, पश्चाताप. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द sentence in the very best way, and I hope you understood it very properly. So please, all of you, first of all, I want to say you that if you not remember this long definition, so you will give only the one line definition that is also a correct definition, and that is what, that when a sudden feeling and emotions come out from you, when a sudden feeling and emotions comes, at that time we use the exclamatory sentence. Okay, I hope, and please remember this structure also, then on you know it properly that how we make the exclamatory sentence. And in the next video I will give you some other things that is very important. So thank you.